دولت کی لالچ میں تم نے اپنے ایمان دھرم کو بیچنے کا کام کیا ہے. ایک مکی چڑھانے سے جہنمی ہوا, نہیں چڑھایا تو جنتی ہو گیا. کیا ہو گیا مسلمان, کیا ہو گیا تمہارا ایمان؟ میری مائیں بہنوں, آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کہتے ہم کمزور ہیں, نہیں, آپ ماؤں کا بھی شہادت, ماؤں کو بھی قربانیاں موجود ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت آسمہ بنت ابو بکر کی بیٹی ہے, اپنے بیٹا کو پھانسی میں چڑھ کے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ علم یعنی لہذا الفارس ان یترجل, کیا اس شہسوار کو, اس خطیب کو منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار کی ماں ہے, ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے. کہا سمیہ ابھی بھی محمد کا دین کو چھوڑ دو, نہیں تو تمہیں دو ٹکڑا کر دیا جائے. سمیہ آپ کو پتا ہے آپ کو چیر دیا جائے گا, آپ کے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ میں, دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ میں باندھ کر کے اونٹ کو بھگا دیا جائے گا, آپ کو پھاڑ دیا جائے گا, چیر دیا جائے گا. حضرت سمیہ نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اللہ کی راہ میں چیر جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا گوارا ہے, لیکن یہ اللہ میں تیرے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار. میری مائیں, فرعون جیسا ظالم بادشاہ, اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ہے, پوری دنیا فرعون کی عبادت کر رہی ہے, فرعون کی سجدہ کر رہی ہے, فرعون کی بیوی سجدہ کرنے کے لیے تیار. جب فرعون کو پتا چلا تلوار لے کے گھر کے اندر جاتا ہے, کہا آسیہ خبر ملی ہے کہ تم مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو. حضرت آسیہ نے سینہ تانتے ہوئے کہا تھا میری مائیں یہ تھے اس زمانے کی خاتون. حضرت آسیہ نے کہا ہاں میں تیری عبادت نہیں کرتی. کہا کیوں؟ کہا تم اللہ نہیں ہو, تم میرا شوہر ہو, تم کو شوہر کی حیثیت سے مانتی ہوں, میں تمہاری خدمت کر سکتی ہوں, جو کہو میں مان سکتی ہوں, لیکن تم کو اللہ نہیں مان سکتے ہو. یہ سننا تھا کہ فرعون غصے سے چراغ پا ہو گیا. یہ فرعون حضرت آسیہ کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا, حضرت آسیہ کو چیت لٹا دیا, تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ آپ بولو آسیہ اپنے شوہر کو خدا مانو گے کہ آسمان کے اللہ کو خدا مانو گے؟ حضرت آسیہ نے اس تکلیف بھری دکھ بھری وقت میں حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ اللہ جنت کیسا گھر ہے, کیسی باغات ہے, کہ اللہ تعالیٰ جنت دکھا دیا. یہ دنیا کا پہلا ریکارڈ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کسی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا, نہ مرد کو نہ عورت کو. یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ہے کہ حضرت آسیہ کو دنیا میں جنت دکھایا گیا. حضرت آسیہ کے سامنے جنت کی سین کو پیش کیا گیا اور جنت میں اٹھا لیا گیا. میری مائیں ایک ہی جھٹکے میں جے شری رام پڑھنے کے لیے تیار ہو. پتا ہونا چاہیے کہ حضرت آسیہ نے کس رب اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, بلا سبب وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹے رہے, پھر اس پر جمے رہے, یہ اعلیٰ درجے کے مومن. میرے بھائیو دوستو, آج کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, جہیز کا بازار گرم ہے, کیا سرشا بازی ہے, کیا انصاری ہے, کیا شیخ و سید ہے, ہم نے اس بازار کو گرم کر رکھا ہے. اس جہیز کی لعنت سے بچے, اس جہیز کی لعنت سے پاگل ہو کر عائشہ نام لڑکی گجرات کی دھرتی میں سابرمتی ندی پر کودنے پر مجبور ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ خودکشی کرنا شریعت پہ غلط ہے, اس لیے میری ماں, میرے نوجوان دوستوں, کسی دوسری دنیا میں جا کے بھیک مانگ کر کھانا یہ گوارا کر لو, لیکن اپنے آپ کو پوائزن کھا کر یا پھانسی میں لٹکا کر یا پانی میں ڈبو کر اپنی آپ کی موت مت دو. شریعت نے منع ہے, یہ خودکشی حرام ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے جایا نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں دوستوں, میری مائیں یہ مت سمجھو کہ ساس تکلیف دے رہی ہے, ہسبینڈ تکلیف دے رہا ہے, اس لیے ہم زہر کھا کر مر جائیں گے تو جنت پا لیں گے. نہیں, آپ نے دائمی جہنم خریدنے کا انتظام کر لیا ہے. اس لیے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, علاقہ چھوڑ دو, گاؤں چھوڑ دو, کسی دوسرے علاقے میں بھیک مانگ کر کھاؤ, مزدوری کر کے کھاؤ, یہ گوارا کر لو. لیکن میری مائیں, میرے نوجوان دوستوں, کتنا مجبوری ہو جائے, کٹھن سے کٹھن حالات آ جائے, اپنے آپ کو خودکشی مت کرنا, اپنے آپ کو جان مت لینا. دوسری دنیا میں زندہ رہو, کہیں گمنام بن کے رہو, بھیک مانگ کے کھاؤ, لیکن اپنے آپ کو خودکشی کا یہ غلطی دوبارہ مت کیجیے گا. عائشہ نام کی لڑکی پھانسی پہ چڑھ گئی یا پانی میں ڈوب گئی سابرمتی ندی میں, کیوں؟ جہیز کی لڑکی
रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल के फेंक रहे हैं। क्यों इस जहेज की लानत को हम बार-बार रहे हैं? एक तरफ तो ईमान मजबूत नहीं, ईमान की कमजोरी का नतीजा है। पूरी दुनिया जानती है कि रस्म बारात रस्म रुश्ते खाना है, फिर भी हम 150, 200, 250 करके बारात भेजा करते हैं और लड़की की बाप से पैसा लेके लेते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसको इसके सद्दे बाप के लिए, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ मौलवियों से काम नहीं होगा मेरे भाई। हर गांव, हर इलाके के मौलवी, मुखिया, सरपंच, थाना प्रभारी से मिलकर एक कानून बनाए कि हमारे उस इलाके में जो जहेज लेगा, ज्यादा बारात भेजेगा, उसके घर में ना तो शादी की दावत में जाना है, ना निकाह पढ़ाना है। सारे मौलवियों का इत्तेहाद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मौलवी नहीं पढ़ाया तो दूसरे मौलवी जाकर पढ़ा दिया 500 रुपये के लालच। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा अज़्म करना पड़ेगा, अज़म करना पड़ेगा कि हम मुखिया सरपंच प्रशासन को लेकर कि जहेज किसी को लेने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमारा माशरा आगे बढ़ जाएगा मेरे भाई। ईमान की मजबूती आ गई और सबसे बड़े भीख मंगा यही होते हैं। इसको इंटरनेशनल फकीर कहा गया है कि हम जहेज की शक्ल में पैसा लेते हैं। बेटी के बाप को भी सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि जब हम शरीयत के मुताबिक मीरास में तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार है तो तुम जहेज की लानत क्यों बोल रहे हो? जहेज लेके क्यों लानत बोल ले रहे हो? मैं तुमको के तहत तुम्हें पैसा हिस्सा देने के लिए तैयार। क्या मतलब? इस्लाम का कानून है, कुरान का फैसला है कि बेटा बेटी को जमीन देना होगा। आपने अगर बेटा को 1 बीघा जमीन हिस्से में दिया है तो बेटी को 10 कट्ठा देना पड़ेगा। आपने अगर बेटा को 2 कट्ठा घरारी मकान बनाने के लिए 2 कट्ठा जमीन दिया है तो बेटी को 1 कट्ठा की कीमत भिजवाना होगा। आपने अगर बैलेंस पैसे में से 2-2 लाख बेटा को दिया है तो बेटी को 1-1 लाख भिजवाना पड़ेगा। अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो क़यामत के दिन आप पास नहीं हो पाएंगे। आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके ज़कात, आपके और नेकियों के आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। कहेगा जाओ पहले इंसाफ करो, तुमने बेटा बेटी के इंसाफ का काम नहीं किया। हमने इस सुन्नत को छोड़ा है मीरास की, इसकी वजह से आज हमारे ऊपर लानत आ रही है। हजरत सुहैब और फज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि कुर्बे क़यामत में जिस इल्म को पहले उठा लिया जाएगा वो इल्मे मीरास होगा। मीरास नहीं देगा, मीरास ना देने की वजह से ये जहेज की लानत आ गई। इसलिए मेरे भाई मीरास दीजिए। दुनिया के किसी धर्म में मीरास देने का हुक्म नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख का धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो। दुनिया के किसी भी धार्मिक किताब में बेटी को जमीन जायदाद में हिस्सा देने की बात नहीं आई है। एक वाहिद किताब कुरान मजीद है कि कुरान ने फैसला कर दिया है कि बेटी भी तेरी औलाद है, बेटा भी तेरा औलाद है, इसलिए सबको बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। आज यही लोग कहते हैं कि हम औरत को इंसाफ दिलाने चले। इंसाफ तो मज़हब इस्लाम ने दिया है। मेरी माएँ, मेरी बेटियां, आपको सोचना होगा मज़हब इस्लाम ने कानून बनाया है कि काले गोरे की तमीज ना करो। अगर सीरत अच्छी है तो घर का बहू बना लो। अगर आपकी बेटी मालदार है, खूबसूरत है, कोई गरीब लड़का दीनदार है तो निकाह कबूल कर लो। मेरे भाई एक वाकया पेश करके अपनी बात को खत्म करूंगा, टाइम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ नबी कायनात के सामने एक काले कलर सहाबी तशरीफ लाए, कहा पूरी मेरी शादी पूरे इलाके में नहीं हो रही, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। इमाम कायनात ने घर में भेज दिया। घर में जाके कह रहे हैं कि आपकी बेटी को देखने के लिए आया हो, ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए। गार्जियन निकलता है, निकल के कहता तुमने अपने चेहरे को देखा? इतना काले कलो संतान के तरह चेहरा है, मुंह में चेचक का दाग है, और निकाह का पैगाम लेकर मेरी बेटी के पास आए हो, यहाँ से उठ कर चले जाओ। भगा दिया। अभी गए भी नहीं 2-4 कदम, लड़की बाहर निकलती है कि अब्बा मुझको इस काले लड़के से निकाह मंजूर है, मंजूर है। कैसी तरबियत दिया था बेटी लोग। कहा कि अब्बा ये आने वाला काला है, ये आने वाले के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे रिश्ता मंजूर है। ऐसी बेटियां थी जो खूबसूरत होकर होशियार है, पढ़ी लिखी है, मालदार है, एक गरीब घराने की शादी करने के लिए तैयार। बेटी के बाप भी कभी जालिम होते हैं। कहे क्यों? बेटी थोड़ी पढ़ लिख ली, कहता हमारी बेटी का जोड़ा हमारे मुआशरे पे नहीं मिल पा रहा है। खबर आती है कि उनकी बेटी गैर मुस्लिमों से राजपूत से कोर्ट मैरिज करा ली है। मेरे भाइयों
दुख की बात, तकलीफ की बात है मेरे भाई। बेटी के बाप को भी संभालने की जरूरत है। मैं एक मिसाल, हदीस है, हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबसूरत बेटी है, पढ़ी लिखी है, निकाह का पैगाम लेके आ गए 5वें प्रधानमंत्री खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अमीर मुआविया। किनके लिए? अपने छोटा बेटा यजीद के छोटे भाई के लिए का रिश्ता करने आया। अबू दर्दा ने कहा कि आपके बेटा से मेरा रिश्ता मंसूब नहीं तो क्या शादी? बताओ पूरे लाभा मणिहारी प्रखंड में कौन घर ऐसा है कि बेटी खूबसूरत और पढ़ी लिखी हो? अरे बड़े एमएलए साहब, मुसलमान एमएलए अपनी बेटा से रिश्ता जोड़ना चाहता हो, खुश हो जाएंगे। जानते हमारी बेटी की खूबसूरती तालीम देखकर कितने बड़े लोग यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं अमीर मुआविया बेटा से रिश्ता जोड़ने के लिए, कुर्बान जाइए हजरत अबू दर्दा पर। हजरत अबू दर्दा ने कहा अमीर मुआविया आपके बेटा से मैं अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तैयार नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटी की शादी एक काले करोड़ लड़का जो गरीब है, रोजाना जलावन जंगल से काट के लाता है, बाजार में बेच के किसी तरह खा पी के गुजारा करता है, इस गरीब लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार। ऐसे बेटी का बाप पैदा किया हो कि बेटी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, लेकिन दीन के बुनियाद पर आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया। लड़के वाले भी जालिम होता है, लड़के वाले सबको हिमा बनने की पोती चाहिए। इमाम कायनात ने कहा नहीं नहीं, काले गोरे की तमीज ना करो। अगर सीरत अच्छी है, बहू देखने के लिए गए हो, अगर तुम लड़के वाले मालदार हो, लड़की गरीब है, लड़की के माँ बाप गरीब है, काली है, लड़की देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन सीरत अच्छी है, नमाजी है, चाल चलन है, यकीन मानिए आप उससे शादी कराइए अपने बेटे की। देखिए रब का हुक्म है कि काला गोरा बनाना ये मेरा हुक्म है, मैं ऐसा बनाया हूं, मैं नाइंसाफ नहीं हूं। वक्ती तौर पे आपको लगता होगा कि अल्लाह नाइंसाफ है, नौजुबिल्ला, कि अल्लाह ने किसी को अरबपति बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, अल्लाह ने किसी को काला बना दिया, किसी को लंगड़ा लूला बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया। अल्लाह कहता नहीं नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, एग्जाम लेने के लिए कि मालदार होके तुम फिरौन तो नहीं बन रहे हो, गरीब बन के तुम एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहे हो। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए ये सारी चीजें जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज दिया है कि अल्लाह ताला सबको ऐसा इंसाफ इसलिए कराया है ताकि आपका एग्जाम ले, आपका इम्तिहान ले, आपको जांचे, इसलिए माशरे से जहल की लानत को खत्म कीजिए, दीन की मजबूत कीजिए। और इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का मिस्दाक बनिए। आपको एक हदीस सुना के खत्म कर देता हूँ। एक मुशरिक है, काफिर है, वो हज के मैदान में नबी के हाथ में इस्लाम कबूल कर लेता है, 11 बजे शहीद हो जाता है। नमाज का टाइम पाया नहीं पाया, नबी बार बार दोहराते थे कि ये वो साहबी रसूल है कि जिसने अल्लाह के लिए एक भी सजदा नहीं किया था, अल्लाह के लिए एक भी सजदा करने का मौका नहीं पाया। सुबह 6 बजे लगभग इस्लाम कबूल किए हैं और 11 बजे शहीद हो जाते, आला दर्जे का जन्नती। किस बुनियाद पर? अकीदा तौहीद के बुनियाद पर। मेरे भाई ईमान को मजबूत करो। एक कप चाय पे ईमान मत बेचो, एक कप चाय, एक प्लेट खाने पे ईमान को मत बेचो। साहबा तो वो थे कि जानी लड़ा सकता था, लेकिन किसी हाल में इस्तिकामत पे दीन को दामन से जाने नहीं दिया था। हजरत मुआज़ बिन जबल को इमाम कायनात ने यमन का गवर्नर बना के भेजा था। कहा मुआज़ यमन जा रहे हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारे बदन को छलनी छलनी कर दिया जाए, फिर भी अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराना। हम कैसे मुसलमान हैं, कितने कमजोर हैं कि इस दौर में, इस मामूली झटके में हम जोर जोर से कुछ कुछ शिरकिया कलिमात पढ़ने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों क्या हो गया है? ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ईमानदार मोमिन का तकाजा है कि मरेंगे जिएंगे अल्लाह की रजा के लिए। एक सहाबी है, हजरत उमैर के सामने खजूर खा रहे हैं, 11 खजूर है, 2 खा चुके हैं, नबी आ गए, कहा इससे भी बेहतर खजूर मरने के बाद अल्लाह खाने देगा कि नहीं? कहाँ मिलेगा? खजूर के गुच्छे को गिरा देते हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। वो डरते नहीं थे मौत से, इसलिए नबी कायनात ने कहा कि कुर्बे क़यामत में तुम्हारी मिसाल का गुस्सा इस सैल समुंदर की झाग की तरह होगा।
مینا کی طرح ہوگا، کمزور بنا دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں نبی نے کہا قرب قیامت میں دنیا کی ساری صحیح طاقتیں مسلمان کو مٹانے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے 3 دن کی بھوکے کھانے کے لیے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہو۔ لیکن جان لو اسلام پودا ہے، جتنا کاٹو گے ہرا ہوگا، مٹانا چاہو گے مٹا نہیں پاؤ گے۔ تیسری حدیث نبی نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا وہن یہ ہے کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کے مسلمان دنیا کے پیچھے خواہشات نفسانی کو ترک کرے گا، موت سے نفرت کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری چیزیں ہیں